مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم خوشیوں کے ساتھ ہماری فتح یابی زندگی کے دن منا رہے ہیں کہ ہمارے خدا نے فتح یاب ہوئے تھے۔ جس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں اور ملک آزاد ہوتے ہیں تو پھر وہ جشن آزادی کے دن مناتے ہیں، آزادی کا دن مناتے ہیں کہ آج کے دن ہم آزاد ہوئے تھے، تو ہم بھی وہی منا رہے ہیں کہ ہمارے خدا نے موت پہ فتح پا کر ہمیں آزاد کیا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ اور کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو پہلے سے آگاہی کر دی، بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ پھر کس طرح خدا شان سے یروشلم میں آئے، اور جو سنڈے کل ہم نے منایا وہ یہی تھا۔ یروشلم میں کس طرح خداوند کی انٹری ہوتی ہے۔ اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب لہلکا، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور وہ گدھی پر، بلکہ جوان گدھی پر سوار ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خداوند وہ اسرائیل کے نیا بادشاہ تھا، وہ جنگی ہتھیاروں کے ساتھ، رٹھوں کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ یہ اس امن اور سلامتی کا نشان ہے جو یروشلم کی قوموں کے لیے قائم کیا گیا۔ اتنی بڑی بادشاہی جو صرف ہمارے خداوند کے ہاتھ میں دی گئی، جو خداوند نے کیا دنیا کو بچانے کے لیے، انہوں نے یہ جنگ لڑی اور وہ اس میں فتح یاب ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند کتنے حلیم تھے۔ انہوں نے حلیمگی یہاں تک دکھائی کہ وہ شاگردوں کے پاؤں دھلائے انہوں نے، کیونکہ مسیح خدمت کر کے خادم بن گئے۔ مسیح نے تعلیم دی تو وہ استاد بن گئے، مسیح نے شفا دی تو وہ شافی بن گئے۔ خداوند نے سارا کچھ جو خدا کے پاک ہاتھوں میں تھا، اس نے وہ سب کچھ کیا جو باپ کی مرضی پہ تھا۔ جب مسیح صلیب پہ لٹکے تو وہ بے عیب برے کی طرح ہو گئے۔ مسیح سب کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ مسیح نے موت کو شکست دے کر فتح یاب زندگی گزاری، اور مسیح جب جلال میں آئے تو وہ خود خدا بن گئے۔ پریز دی لارڈ۔ اور کلام مجسم ہوا اور سچائی اور فضل سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے اکلوتے بیٹے کا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کی محبت دیکھ رہے ہیں، کس طرح خدا نے ہمیں محبت دکھائی۔ اور آج کا کلام، آج کا جو تیسرا کلمہ ہے وہ محبت کا کلمہ ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کس طرح وہ کلمہ ادا کیا۔ اس کلمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا چاہے کتنے دکھ میں تھے، چاہے کتنی تکلیف میں تھی، چاہے کتنے مشکل میں تھے، کہ جان پہ ان کی بنی ہوئی تھی، ان کو پتہ تھا کہ میں صلیب پہ لٹکا ہوں، سب کچھ پتہ تھا، لیکن انہوں نے اس محبت کو ظاہر کیا، اپنی ذمہ داری کو، جو ماں کی ذمہ داری تھی، انہیں نہیں بھولے۔ یہ آج کا کلمہ تیسرا کلمہ ہے جو یوحنا کی انجیل سے لیا گیا ہے، اور اس کی 26 آیات میں یوں محکوم ہے: یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جو اس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا باپ نے یہ کلمہ اپنی ماں اور جو شاگرد تھا، ہم دیکھتے ہیں جیسے یروشلم میں بڑی بھیڑ نے بہت سے لوگ تھے جو وہاں خدا کا انہوں نے استقبال کیا۔ اور جب وہ اتنے سارے کیوں آئے تھے؟ کیونکہ وہ خدا سے ملنا چاہتے تھے، کیونکہ جب خدا نے لازر کو زندہ کیا تھا، جب سے وہ لوگ خدا کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ سارے دنیاوی لوگ تھے، وہ سارے دنیاوی لوگ تھے جو بھاگ گئے۔ جب خدا پہ مشکل آئی، سارے شاگردوں نے چھوڑ دیا، سوائے اس یوحنا نے جو خدا کا وفادار شاگرد تھا، وہ کھڑا تھا، اور خدا نے اپنی ماں کی ذمہ داری اس وفادار اپنے شاگرد کو دکھائی، اس کو دے دی، کہ یہ ماں کو بولا کہ یہ تیرا بیٹا ہے آج سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں جا رہا ہوں، باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں، اب میری ماں اکیلی رہ گئی، کیونکہ ہمیں کلام میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ کہاں یوسف کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، واقعی آن لائن بھی میں نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے جو دنیاوی باپ ہیں ان کی ڈیتھ پہلے ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگردوں کو دی، اور اس نے کہا ماں دیکھ آج سے یہ تیرا بیٹا ہے۔ کیا ماں تکلیف میں نہیں تھی؟ ماں اس وقت ایک قربانی نہیں تھی، اس وقت 2 قربانیاں ہو رہی تھی۔ ایک وہ ماں جو اپنے بچے کو صلیب پہ لٹکا ہوا دیکھ رہی تھی،
اور किस तरह वो मुश्किल में थी, किस तरह वो तकलीफ़ में थी कि जब वो उसके हाथों में कील लगाते हैं तो कहती है होली होली लाई केल लान वालिया, क्योंकि कोड़ों की मार से तो मेरे बेटे का जिस्म वैसे ही छन्नी हो गया, अब तो उसमें कुछ भी नहीं रहा। आपको पता है वो जो कोड़ा लगाया जाता था उसके आगे एक कील सा था, जो वो मारते थे तो 7 गोश भी बाहर आ जाता था। कैसी माँ थी जो उस वक्त अपने बेटे को तकलीफ़ में देख रही थी, कैसी वो माँ थी। वो सिर्फ यीशु ही सलीब पे नहीं था, वो माँ भी उसी तरह तड़प रही थी, क्योंकि माएँ तो कहती हैं कि हमारे बच्चों को कभी तकलीफ़ ना हो, वो तो चाहती हैं कि उनकी तकलीफ़ हमें आ जाए। वो कह रही थी कि उसको ना करो बल्कि मुझे मार दो। माँ तो हमेशा यही कहती है ना, तेरी आई जाती मैनू आ जाती। ऐसे ही है ना कि माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं करती कि वो उसका इकलौता बेटा जो सलीब पे पलोटा था, वो सलीब पे लटकाया जा रहा था, वो उस तकलीफ़ में थी, वो पलोटा था। और भी बेटे थे जो खुदा में नहीं चलते थे, यही था बेटा जो खुदा की वफादारी में चल रहा था। और उसने अपने ज़मीन, जिस तरह चौथा हुक्म है जिसमें कि माँ बाप की इज़्ज़त करना, तो उसने हम सबको ये सिखा दिया कि चाहे कितनी भी हो, इंसान मरता हो, कुछ भी हो, अपने फ़र्ज़ को ना भूले। और उसने नहीं भूला, उसने अपनी माँ की ज़िम्मेदारी अपने उस वफ़ादार शागिर्द को दे दी जो उस वक़्त उनमें मौजूद था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम भी इंसान हैं, अगर हम सोच जाते हैं कि क्या होगा हमारे माँ बाप का, लेकिन खुदा ने हमें सबको तालीम दी और सिखाया है कि मोहब्बत किस तरह कामिल बन सकती है। उसने उस वफ़ादार शागिर्द को अपनी सारी ज़िम्मेदारी दे दी, और जब तक उसकी माँ जिंदा रही वो उसी वफ़ादार शागिर्द के पास रही। और वफ़ादारी के साथ मुक़द्दस यूहन्ना और मुक़द्दस मरियम खुदावंद के सलीबी मौत और जी उठने के बाद 12 बरस तक इकट्ठे यरूशलेम में रहे। और फिर जब माँ मरियम का इंतकाल हो गया तो वो वहाँ उनके लिए एक चर्च बनाया गया। और हम देखते हैं कि आखिर तक ये बेटे ने वफ़ादारी की, सिर्फ इसलिए कि उसका आका उसे एक ज़िम्मेदारी दे के गया था, उसका बाप उसे उसका दोस्त उसे एक ज़िम्मेदारी दे के गया था, तो उसने उस ज़िम्मेदारी को पूरा किया। हम यहाँ पे वफ़ादारी देखते हैं कि किस तरह मुक़द्दस यूहन्ना ने इस ज़िम्मेदारी को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें इस कलाम से यही सबक मिलता है कि हमें क्या करना है, माँ की और बाप की इज़्ज़त करनी है, जो खुदा के वादे हैं कि किस तरह माँ बाप की इज़्ज़त करोगे तो वो हमें क्या करेगा, सरफराज करेगा और हमेशा की ज़िंदगी देगा। उसका वादा है इस कलाम के साथ, तो हमें इस वादे को जो खुदा ने पूरा करके दिखाया। देखें, ये पहले से ही पेशन गोई थी जब खुदावंद यीशु पैदा हुए थे। अगर हम देखें लूका की अंजील, उसका 33 चैप्टर है, उसकी 35 वर्स में यूँ माकूम है, और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे। और शमौन ने उसके लिए दुआ खैर की और उसकी माँ और मरियम से कहा, देख ये इसराइल में बतेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसे निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। तो ये पेशन गोइयाँ खुदावन जब पैदा हुए थे जब से हो रही थी, लेकिन जब खुदावन यीशु नासरी लकड़ी पे लटका गया, वो सिर्फ मेरे और आपके लिए, वही मेरी और आपकी नजात के लिए। और खुदा ने हमें एक नया हुक्म दिया है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी उसी तरह तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये हमारे खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमें क्या करनी है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। माँ बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, सब से। वो रिश्तेदार हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, वही खुदा के माँ बाप बहन भाई हैं जो खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं। अगर इसी तरह पहला यूहन्ना पहला बाप उसकी 7 आयत में यूँ माकूम है, लेकिन अगर हम नूर में चलें और जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शिरकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा ने पाक कर दिया है। जब वो हमारे साथ है तो हमने क्या करना है,
हमें मोहब्बत करनी है। हमारा खुदावंद ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है। वो मरते मरते अपने मारने वालों के लिए जीने की दुआ कर गया। मेरा यीशु रहम की इंतहा कर गया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, जब उसने हमें सिखाया कि हमने क्या करना है, मोहब्बत करना है। जिसके अंदर मोहब्बत नहीं उसके अंदर खुदा नहीं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और हमें उसकी मोहब्बत में चलना है। आज निजात इतनी सस्ती हो गई। क्यों सस्ती हो गई? कि फ्री है ना, क्योंकि निजात तो खुदा ने दे दी, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको कीमत अदा करके हमें ख़रीद लिया है। तो हम क्या हैं, उस निजात जो फ्री है उसे भी नहीं ले रहे। हम महंगी चीज़ों पर तवक्कल रखते हैं। वो महंगी है तो चलो महंगी दवाई है, इनू खा लांगे तो शिफा मिल जाएगी। नहीं, हमारे पास शिफा है, हमारे पास यस्सु है, हमारे पास यस्सु का लहू है। इसी तरह यस्सु ने शिफा दी तो वो शाफी बन गया। जब शाफी मेरे और आपके पास है तो हमें कभी फिक्र नहीं करनी। हमें क्या करना है, अपनी फिक्रें उसे दे देनी है और उसकी राह पे चलना है। हमें सिर्फ खुदा के खौफ में रहना है और उसकी सब राहों पे चलना है। उससे मोहब्बत रखनी है अपने सारे दिल से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी जान से। अपने खुदा की बंदगी करनी है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हमें उसी में चलना है और उसी की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है। हमें ज़ुबान ही से नहीं बल्कि कलाम और काम और सच्चाई के ज़रिए से मोहब्बत करनी है। हमें सच्चाई, काम और हमारे पास कोई नहीं। आसमान पे तेरे सिवा कौन है खुदा, और ज़मीन पर तेरे सिवा किसी की मुश्ताक नहीं। सिर्फ खुदा हमारे पास है और उसकी मोहब्बत में हमें चलते रहना है। हमें खुदा में चलना है और उसके हुक्मों को मानना है, क्योंकि अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांप देती है। जब हम मोहब्बत में होंगे तो हम एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे। देखिए हमारे खुदावंद ने कितनी बर्दाश्त की, देखिए हमारी माँ ने कितनी बर्दाश्त की। उस वक़्त यस्सु अकेला नहीं था मुश्किल में, इतनी खुदा की जान नहीं निकल रही थी। खुदा माँ भी उसी तरह तड़प रही थी, माँ की भी जान बार बार निकल रही थी। तो ये मोहब्बत की इंतहा हो गई कि सब कुछ था लेकिन खुदा, उन्होंने फिर भी माफ़ी मांगी उन लोगों के लिए कि दावत वाकई ही झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत क्या करती है, खताओं को ढांप देती है। हमने आज सीख लिया है, हमने आज देख लिया कि किस तरह खुदा की मोहब्बत ने उन सब को जो उनके दुश्मन थे और जो उनके साथ रहते थे, किस तरह मुश्किल के वक्त सब छोड़कर भाग गए, सारे भाग गए। लेकिन यही माँ और वो उसका शागिर्द जो वफादार शागिर्द था वहाँ खड़ा था, बाकी सब भाग के छोड़कर। तो हमें वफादारी करनी है, हमें फर्मा बरदारी करनी है, जो मेरे और आपके खुदा ने हमें सिखाया है। ये खुदा की आखिरी विश है, ये खुदा के आखिरी मुंह की बातें हैं जो हम सीख रहे हैं। खुदा हम सबको हिकमत अक्ल दिनाई दे ताकि हम इस कलाम को लें और देखें कि खुदा ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है। ऐसी मोहब्बत किसी ने नहीं की जो मेरे बाप ने हम सब से की है। हमें भी उसने दिखाया है, उसने बताया है कि हमें भी ऐसा चलना है। हमें खुदा तौफीक बख्शे ताकि हम इन राहों पे चलें और हमेशा उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। यस्सु नाम में आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।